Hi everyone, welcome to our next video in this A to Z series for RBI Grade B. Well, till now we have discussed about D for decoded syllabus. Till D we have covered. In today's video, we are going to discuss E for ESI and English. That is, we are going to discuss the complete strategy for ESI and English. In case you want to watch all these videos that are there in this series, you can access the link of this playlist through a link in the description of this video. Now, why to watch this video? First of all, yes, I'm going to discuss complete strategy for ESI and English, but then there are many videos on YouTube which would tell you the same. What is unique in this? So first of all, this is updated one for 2025 based on 2024 paper. Second is this is I would say very detailed. Most of the videos will tell you what to do, but not how to do. I would also tell you how to do. And third is that this is very self-explanatory, as I would be showing you some examples through previous year questions. ठीक है, जिससे आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा. So let's move ahead. Now you might be having this question in your mind, सर आप ESI इंग्लिश बता रहे हैं, बट आपने अभी तक फेज 1 की डिटेल स्ट्रैटेजी नहीं बताई. So don't worry, ESI इंग्लिश की इस वीडियो में कर रहे हैं. ठीक है, F से जो E के बाद आएगा हम FM की करेंगे, और F के बाद आएगा G जिसमें हम गेम प्लान करेंगे. दैट इज फॉर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एंड GA वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी इन G फॉर गेम प्लान फॉर QRE. तो अभी फोकस करते हैं ESI एंड इंग्लिश पे. सो सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ESI को अगर मैं बाइफर्केट करना चाहूँ विद स्टैटिक एंड करंट, स्टैटिक का वेटेज 25% है, करंट का वेटेज ज़्यादा है. ये चीज़ you need to understand very carefully, because I know many people who just focus on the static part, and by the time exam is near, they are very late for the current affairs. Static is important, but not at the cost of current affairs. Read static just to understand the current affairs. और अगर मैं ESI के 100 मार्क्स के पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करूं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में, it would be 50-50 marks. Out of this 50 in the objective, the weightage of static is very less, hardly 5 marks. Current is around 45 marks. This is eventually becoming 0. 5 marks भी मैंने इसलिए लिखा है कि आ सकता है, but many a times this weightage is 0. All the 50 marks worth of questions are from current affairs. In the descriptive, the weightage of static is 20 marks. Again, this is the maximum, I would say. Some of the times it would be just 10 marks, and the weightage of current affairs would be 30 marks, which can be higher in case the weightage of static is less. So this is the overall picture, and if I include the maximum of the static marks in both the objective and descriptive, that comes out to be 25 out of 100, and that's why I told you that the weightage of static is maximum at 25%. Well, now let's try to discuss these bifurcations one by one. First of all, I'd like to discuss about static for both objective and descriptive. So if I tell you about static for both objective and descriptive, this is your syllabus, which we have discussed earlier also. I would say first unit is a bit technical one and the most important. Second and third unit also you shall be reading. Fourth unit does not require much reading, maybe a cursory reading, maybe just one day to read all these chapters. That's it. तो स्टैटिक हमें कम पढ़ना है, ये मैं समझा चुका हूँ. इसमें फर्स्ट यूनिट टेक्निकल है, एंड इफ आई वांट टू टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, these are the important chapters. Inflation, balance of payment, monetary policy, fiscal policy, measurement of growth, sustainable development and environmental issues, and international economic institutions. और ये objective part के लिए I am telling you, these are the important chapters. I told you that the weightage of objective static is 5 marks. ठीक है, तो हो सकता है ये 0 marks के भी आ जाएं एग्जाम में. As I told you, the weightage of static is decreasing year by year. Sometimes it is even 0 if you analyze the past year papers. So there might be a question in your mind कि सर 5 marks का ही तो आएगा, let me not read anything in the static part, let me just focus on the current affairs. That would be a wrong strategy, because I strongly believe even if you want to have command over current affairs, it is very important to understand the static, because only that will enable you to understand the current affairs. तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ इफ यू आस्क मी सर, शैल आई डू ओनली दीज चैप्टर्स एंड लीव ऑल अदर चैप्टर्स, माय आंसर वुड बी बिग नो, because as I told you, these are the important chapters
from the objective angle. What about the descriptive angle? Now I'll show you one question. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एंगल में हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं चैप्टर से आ जाएं. व्हाट आई टोल्ड यू आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जांपल, देयर हैड बीन अ क्वेश्चन इन आरबीआई 2023 ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी. दिस चैप्टर इज देयर इन द लिस्ट. ठीक है, देन इन 2024 देयर हैज बीन अ क्वेश्चन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस इज पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ. अगेन आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे बिकॉज दिस इज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. But then in the descriptive part, there can be questions like this also. Rural India needs to give priority to women-led development. अब ये वाला चैप्टर women-led development rural India is not here, right? But is it in your syllabus? Yes, because gender issues is kind of related to this question. So इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, because when you ask this question that shall I be leaving all other chapters? For descriptive, no, because descriptive can be asked from these chapters or it can be asked from the other chapters as I just proved to you. तो हमें सारे chapters को एक cursory reading तो देनी ही देनी है. So that was about the static part. Now moving on to the current part in the objective section, that is objective current. अब current में I have earlier shown you कि जो आपका syllabus है वो क्या है. So आपको mainly 3 areas पे काम करना है: government schemes, ESI related current affairs and reports. अब इनका वेटेज बात करें, that is something that cannot be predicted. If I talk about something last year or last to last year, the weightage of schemes used to be 30, the weightage of reports used to be 12, and the ESI related current affairs used to be 8. But of late we have seen that the weightage of schemes is decreasing. It is becoming around 12. This is becoming around 30, so there is a interchange in the weightage between government schemes and reports. So now you cannot say कि reports ज़्यादा आएंगी या government schemes ज़्यादा आएंगी. You would have to read both of them. ठीक है, you would have to read both of them. And if I talk about the duration of current affairs that you need to read for government schemes or reports or ESI related current affairs, for government schemes I would say 6 to 9 months. ESI related current affairs I would again say 6 to 9 months. But for reports, specifically if you see 2024 paper, there have been some reports which are older than 9 months. So I would say 6, 9, 12. So here 6 is must, 9 is desirable, 12 I would say is extraordinary. अगर आप इतना कर पाएं तो बहुत अच्छा है, but 9 तो desirable है ही जो आपको करना चाहिए. अभी हम सारे एक एक एरियाज को, गवर्नमेंट स्कीम्स को, ESI related current affairs and reports को we will discuss one by one and try to further elaborate on how to study them. So जो ये सारी government schemes के areas हैं that I have listed here, right? So this is actually mapped from your phase 2 syllabus. ठीक है, random नहीं मैंने ये डाले हैं. For example, if I say that schemes related to employment generation such as national apprenticeship, Manrega, Startup India are important. Why I am saying so? Because employment generation is part of your syllabus. If I say schemes related to Indian agriculture are important, why I am saying so? Because Indian agriculture is part of your syllabus. If I am saying that social issues related to health, women, education, girl child, right, education in general, these are important. Why I am saying so? Because social justice or gender issues is part of your syllabus. ठीक है, तो टॉपिक्स लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन ऑल्सो बी मैप टू सोशल जस्टिस. टॉपिक्स लाइक अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, एनवायरनमेंट, ठीक है, ये डायरेक्टली दिए हुए हैं. अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, environment. So all these topics for which I am asking you to read the schemes have been mapped from your syllabus itself. There is nothing different. Maybe if I show you some examples, it will become more clear. For example, in RBI 2024, there was a question from PM Pranam schemes. Now, PM Pranam is related to what? This is related to environment, right? So this proves what I'm trying to say. Then there was a question on National Career Service Project, which is related to employment, and employment is part of your syllabus. Then Michelle Vatsalya is for child development, right? So यहाँ पे गर्ल चाइल्ड की बात की है मैंने अंडर सोशल इश्यूज, या फिर अंडर सोशल जस्टिस ऑल्सो व्हाट यू रीड इज द स्कीम्स फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड, ऑर्फन्स, गर्ल चाइल्ड,
विडोज, फार्मर्स, उनके लिए जो भी इनिशिएटिव्स हैं दैट विल कम अंडर सोशल जस्टिस। तो ये एरियाज हैं जहां पे आपको स्कीम्स पढ़नी है। बट नाउ if you would start reading, you would analyze that under each of these areas there are multiple schemes. Suppose if I want to tell you that read about Indian agriculture schemes, there might be 100 schemes on Indian agriculture itself. PM Kisan, Fasal Bima Yojana, and all that, right? I mean, there is no need of me naming them. तो आप स्कीम्स को फिल्टर कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यस, सिलेबस से रिलेटेड तो पढ़नी है, बट सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हैं. सो हाउ कैन यू फर्दर फिल्टर इट आउट इज दैट यू just read the schemes which are in news on PIB. PIB क्या है? Press Information Bureau. This is a government website where all the government initiatives are posted. जो भी नए नए initiatives हैं, कोई स्कीम लॉन्च हो रही है, कोई अपडेट हो रहा है गवर्नमेंट की साइट पे, मिनिस्ट्री वाइज every government ministry would post it as a news on PIB. अब उस न्यूज़ में अगर कोई स्कीम की बात की जा रही है, लॉन्च की जा रही है, अपडेट की जा रही है, ऑल्टर की जा रही है, दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट स्कीम टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. और हमें कब तक ट्रैक करनी है जो स्कीम्स न्यूज़ में है? 6 to 9 months प्रिसीडिंग योर एग्जाम. मतलब एग्जाम अगर दिसंबर में है, मैं बोलूँगा अप्रैल टू दिसंबर आप जो भी स्कीम्स PIB में न्यूज़ पे हैं उनको आप कर लीजिए. ये बहुत एक शॉर्टकट है उन्हीं स्कीम्स पे फोकस करने का जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी. अदरवाइज इफ यू स्टार्ट मैपिंग स्कीम्स टू दीज टॉपिक्स देयर वुड बी थाउजेंड्स ऑफ स्कीम्स. एंड व्हाट आर द डायमेंशंस दैट यू शैल बी रीडिंग व्हाइल रीडिंग दी स्कीम्स? तो स्कीम्स पे कुछ डायमेंशंस हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. स्कीम किस मिनिस्ट्री को बिलोंग करती है, व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, what is the funding pattern between state and center, how much state and center are funding, what is the budget allocation in the union budget, what are the objectives, scheme achieve क्या करना चाहती है, who are the target beneficiaries, कौन eligible है, कौन eligible नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन स्कीम्स में से पूछे जाते हैं. So that was about government schemes. Now what about ESI related current affairs? So here I have said that current affairs from your economic and social issue phase 2 topics such as regional economic cooperation, international economic institutions, monetary policy, etc. will be asked in your exam. So this is also nothing but something that I have mapped to your syllabus. तो आपके सिलेबस में रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है, बिल्कुल है. आपके सिलेबस में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, होगा बिल्कुल कहीं ना कहीं. ये रहा. मॉनेटरी पॉलिसी है, बिल्कुल है. सो आपके सिलेबस से रिलेटेड जो नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन में इफ सम समिट हैज हेल्ड, सार्क का कोई समिट हुआ है, ठीक है, जहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज मिलती हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़, उसमें क्या क्या डिसाइड हुआ है, किसने चेयर किया था, कौन प्रेसिडेंट था, ऑल दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू दी रिपोर्ट्स पार्ट. अब रिपोर्ट्स में दो चीजें हैं. फर्स्ट इज दीज आर दी रिपोर्ट्स. जो मैं रिपोर्ट्स के नाम बता रहा हूं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, RBI एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री. ये सारी रिपोर्ट्स डायरेक्टली जो मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव जस्ट पुट ऑन रैंडमली. ये कहीं ना कहीं आपके सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल में मेंशन है. इफ यू गो टू द RBI नोटिफिकेशन अंडर ESI डिटेल्स, देयर इज अ सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल. उसमें ये सारी कहीं ना कहीं मेंशन है. जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे ये मेंशनड है यहाँ पे. यूनियन बजट, वेल इफ इकोनॉमिक सर्वे इज देयर, यूनियन बजट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यहाँ पे है. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यहाँ पे है, राइट. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दे हैव मेंशन्ड मटेरियल सोर्स फ्रॉम RBI वेबसाइट. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बिलोंग्स टू RBI. करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, इट इज देयर. RBI एनुअल रिपोर्ट, it is there. Reports on trends and progress in the banking industry, it is there. So almost everything that I've picked up is mentioned in the suggested reference material, and there have been a lot of questions that have been asked from this in your previous year papers. Let me show you. In RBI 2024 itself, there was a question, right, on GDP and all, which was actually sourced from economic survey. So इसका आंसर economic survey था. क्वेश्चन ही यही था कि ये किस सोर्स से पूछा गया है. तो इकोनॉमिक सर्वे जैसा मैंने बोला, इट इज इन योर लिस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट.
Then there was a question on World Economic Outlook. Again, World Economic Outlook is there in your source. This is again what I'm saying is being vindicated here. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. I'm just giving you few examples, but I hope this will give you a lot of clarity. Now, there are other reports which are not in this list, but they are related to phase 2 syllabus. जैसे कि कोई जेंडर इक्वालिटी पे रिपोर्ट आ गई, एनवायरमेंट पे रिपोर्ट आ गई, पॉवर्टी पे रिपोर्ट आ गई, माइग्रेशन पे आ गई, अर्बनाइजेशन पे आ गई. सो ऑल दीज रिपोर्ट्स विच आर रिलेटेड टू फेज 2 सिलेबस, लाइक जो यहाँ पे टॉपिक है, इन टॉपिक से किसी भी टॉपिक पे अगर रिपोर्ट आती है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. एंड वन थिंग दैट यू नीड टू टेक इन टू अकाउंट, ओनली दोज रिपोर्ट्स विच आर रिलेटेड टू योर टॉपिक्स एंड इज बीइंग रिलीज बाय ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेचर. अब पॉवर्टी पे हर साल 50 रिपोर्ट रिलीज होती है, बट हमें सिर्फ उन रिपोर्ट्स पे फोकस करना है विच आर बीइंग रिलीज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेचर, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जिनको दुनिया पहचानती है. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट एट इंटरनेशनल लेवल, कौन से बड़े बड़े बॉडीज हैं? IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, OECD, यूनेस्को, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशंस, WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ILO. ऐसे ही नेशनल लेवल पे बात करूं तो RBI, SEBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, ऑल दीज आर बिग नेम्स. If they release a report in the area related to the phase 2 syllabus, that is on these topics, that becomes very crucial for you. I'll show you some examples. Now, there was a question on gender parity which was actually from Global Gender Report. This was in RBI 2024, and this report was released by World Economic Forum. So, Global Gender Report, is this related to your phase 2 syllabus? Yes, because in your phase 2 syllabus there is a topic called gender equality. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिलीज की है. क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट में है? बिल्कुल है, जैसा मैंने यहाँ पे बोला. तो ये क्वेश्चन तो बनता था, आया भी है. तो हम इतनी सारी रिपोर्ट्स ना पढ़ के जस्ट फोकस ऑन द रिपोर्ट्स विच आर रिलीज बाय दीज बॉडीज ऑफ स्टेचर, वी वुड बी फिल्टर आउट द रेलेवेंट वंस. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि आप कोई भी रिपोर्ट उठा लो, इकोनॉमिक सर्वे उठा लो, या जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट उठा लो, ये बहुत बड़ी बड़ी हैं ना. हाउ टू रीड देम? सी, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, जस्ट रीड देयर समरी. सो मेनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स वुड हैव देयर समरी. फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट की समरी गवर्नमेंट ही रिलीज करती है, जो PIB पे आती है. ठीक है. फिर जो ये आपकी रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इनकी भी काफ़ी बार समरी रिलीज की जाती है. अगर समरी रिलीज नहीं की जा रही है, उनकी कुछ हाईलाइट्स होंगी जो वही ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करेगी जिसने रिपोर्ट रिलीज की है. तो आप हाईलाइट्स पढ़ लो. अगर हाईलाइट्स भी नहीं है तो इन्हीं रिपोर्ट्स को कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में भी कवरेज मिला होगा. न्यूज़पेपर्स वुड कवर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप सिर्फ वो कर लो. The idea is, do not try to read the whole report. That is next to impossible. Just try to focus on the relevant part, which would be either in the summary, highlights, or the important data which is given in the newspapers. ठीक है. ऑब्जेक्टिव के लिए तो काम करेगा, डिस्क्रिप्टिव के लिए ये शायद नहीं काम करेगा. आई विल टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव लेटर. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव करंट की स्ट्रैटेजी हो गई. नाउ व्हाट अबाउट द डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स? मतलब जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड, उनकी तैयारी कैसे करनी है? तो उसके लिए दो एरियाज हैं, रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स. इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं. If I first talk about reports, these are the same reports that I told you about the objective part. ठीक है. तो इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, ये थर्ड एंड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, RBI एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. और ये सारी रिपोर्ट्स, जैसा कि मैंने बताया था, ये यहीं आपके सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल में है और कहीं नहीं है, यहीं से मैंने ली हैं. ठीक है. अब इन पे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कुछ. और हाँ, ये तो ये वाली रिपोर्ट्स हो गई. ठीक है. और जैसा मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था, कुछ फेज 2 से रिलेटेड रिपोर्ट्स होंगी, फेज 2 के सिलेबस से. ठीक है. और ये वैसे ही है डिस्क्रिप्टिव के लिए भी, वी हैव टू रीड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेचर एट इंटरनेशनल और नेशनल. मतलब ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के लिए रिपोर्ट्स सेम पढ़नी है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है. और मैं दिखाऊंगा कि कैसे यही स्ट्रैटेजी यूज करके जो मैंने ऑब्जेक्टिव में बताई थी, डिस्क्रिप्टिव में भी बाय यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी यू वुड बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा अभी.
But the question that needs attention is how to read these big reports for the descriptive part. For the objective, I told you, read the highlights, read the summary, read the coverage in the newspaper. But will it be sufficient for the descriptive part? I will say that no. आपको रिपोर्ट डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, बट गाइज ये 8 रिपोर्ट्स तो डिटेल में पढ़ ही लो ना यार. It will not only help you in the descriptive part, it will also help you in the interview. It is worth it, I would say. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं. जैसे कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट से क्वेश्चन आया. अब एम्प्लॉयमेंट क्या आपका टॉपिक है? बिल्कुल है. ये रिलीज किसने की? ILO ने की. क्या ILO हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में है? बिल्कुल है. तो क्वेश्चन बनता था, आया है. सिमिलरली विमेन लेड डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया है. ठीक है. इकोनॉमिक सर्वे से भी इसको मैप कर सकते हैं. इकोनॉमिक सर्वे में एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे बात की गई थी. क्या इकोनॉमिक सर्वे हमारी रिपोर्ट्स की लिस्ट में है डिस्क्रिप्टिव के लिए? बिल्कुल है. क्वेश्चन बनता था. प्रीवियस ईयर्स में भी मैं अगर जाऊं, UNDP की जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया था. क्या जेंडर इक्वालिटी, ये 2023 के क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, जेंडर इश्यूज आपके सिलेबस में है? क्या UN इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ये रिपोर्ट है? बिल्कुल है. फिर करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट पे 2023 में क्वेश्चन आया. तो करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट तो हमने सीधा ही यहाँ पे डायरेक्टली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में दे रखी है डिस्क्रिप्टिव के लिए. फिर माइग्रेशन पे क्वेश्चन आया था. ये रिपोर्ट थी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. तो माइग्रेशन तो आपका वैसे भी टॉपिक है, ठीक है. और इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में है? बिल्कुल है. ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, माइग्रेशन पे है. और ये रिपोर्ट तो वैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट सीधी ही हमने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में भी दे रखी है यहाँ पे. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर आप इसको समझ लें, आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द पेपर, बट आप बहुत ही अच्छे से चीजों को मैप कर कर समझ पाएंगे दैट व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज नॉट रेलेवेंट फॉर द एग्जाम. ठीक है. और एडिटोरियल जरूर पढ़िए. रिपोर्ट्स के बाद अगर दूसरा नंबर आता है वो है एडिटोरियल्स का. फेज 2 के टॉपिक से रिलेटेड जो भी एडिटोरियल न्यूज़पेपर में आते हैं, खास करके हिंदू न्यूज़पेपर में, उनको आप पढ़िए. और एडिटोरियल्स को पढ़ना कैसे? आपको एडिटोरियल्स को पढ़कर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं एक एक्सेल में टॉपिक वाइज. हेल्थ पे था तो हेल्थ के अंडर आ जाएंगे, एजुकेशन पे था तो एजुकेशन के अंडर आ जाएंगे, जेंडर इशू पे था तो जेंडर इशू के अंडर आ जाएंगे. बट एरिया वाइज, मतलब टॉपिक वाइज आप कुछ पॉइंट लिखेंगे, डेटा पॉइंट्स लिख लेंगे कि भैया इस आर्टिकल में बात की गई थी कि इंडिया की GDP ऐसे डिक्लाइन कर रही है, पहले इतनी थी अभी इतनी है. इस आर्टिकल में एक रिपोर्ट को कोट गया था, वो रिपोर्ट ये कहती है, आप वो नोट कर लेंगे. तो इस तरह से आप एक टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे, डेटा पॉइंट्स. अलॉन्ग विद डेटा पॉइंट्स ट्राई टू नोट कि इन दैट एडिटोरियल जो भी प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही है वो प्रॉब्लम क्यों है, व्हाट आर द चैलेंजेस in solving that problem, or what is the background of that problem, what steps have been taken to solve that problem. ठीक है. कुछ रिपोर्ट्स या स्कीम्स को कोट किया गया है, वो लिखिए जो मैंने यहाँ पे बताया, डेटा पॉइंट्स नोट कीजिए. उसका सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंगल उसमें दिया होगा, उसको नोट कीजिए. तो ये सारी चीजें अगर आप एक टॉपिक के रिगार्डिंग एडिटोरियल से समरी निकालेंगे, इट वुड बी वेरी easy and very healthy for you while you would be sitting in the descriptive paper, because आपको सारा मक्खन की तरह आता होगा, आप आराम से लिख पाएंगे. और बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने आपको ये तो बता दिया कहाँ से डिस्क्रिप्टिव आता है, किस तरह एडिटोरियल्स को पढ़ना है. बट डिस्क्रिप्टिव स्किल इज अ सेपरेट टास्क. आप डेटा बना लेंगे, सोर्सेज ढूंढ लेंगे, बट राइटिंग इज समथिंग दैट इज यूनिक टू योर स्टाइल. नाउ डिस्क्रिप्टिव को डेवलप करने के लिए आई वुड टेल यू 7-point एजेंडा. First is recall versus recognition. Now, most of the times when you do your objective paper, it is about recognition. You see 4 options, you try to take one option which you can remember by looking at those options, and you go ahead. But in the descriptive, there is no option, neither any hint given to you. You have to just recall. So if I ask you what does the Google logo looks like, though you would have seen it 100,000 times, but can you tell me exactly what is the color of GOL in that logo? You might not be right. But yes, if I show you variations of these 4 logos, maybe you will be able to identify that this is the exact logo.
सो इसको देख के आइडेंटिफाई करना इज रिकॉग्निशन, इसको बिना देखे बताना कि ये कैसा दिखता है, दैट इज रिकॉल। और डिस्क्रिप्टिव में आपको यही करना होता है, बिना ऑप्शंस को देखे, बिना किसी हिंट को देखे, यू वुड हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स। समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इवन वन पॉइंट, सो उसके लिए I would simply say try to make mind maps, because that would help you to revise quickly and again, which will increase your retention for the descriptive part. Then spelling and grammatical errors are very common, और ये इसलिए common है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें spellings नहीं आते हैं, but when we type online, we are addicted to auto correction. एग्जाम में ऑटो करेक्शन नहीं होगी, हमारे बहुत सारे स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स होंगे जिनको हमें जीरो पे लाना है, जीरो पे। बिकॉज आप जितना मर्जी अच्छा लिख लीजिए, अगर उसमें ग्रामर और स्पेलिंग एरर्स हैं, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स। टाइपिंग स्पीड इज समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल। आपको सारा पेपर आता है, बहुत अच्छा लिखते हैं, बट मेनी ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन पीपल आर नॉट एबल टू टाइप देयर आंसर्स। ठीक है, आपको 90 मिनट्स में मिनिमम आई वुड से 600 2000 वर्ड्स टाइप करने हैं। 2000 नहीं तो चलो आप लगा लो कि हमें 1700 करने हैं। So this is almost like 20 words per minute. Looks very easy, but it is not, because you would have to think also. Sometimes you would have to delete the lines, write them again also. So this is going to be challenging. Freeze word limits. अभी एक नई चीज शुरू हो गई है कि अगर word limit 600 है तो 600 के ऊपर लिखने ही नहीं देगा। तो अगर आप बहुत जल्दी लिखते हैं, वर्ड लिमिट पूरा भी लिख देंगे, कई बार ये होता है कि विद इन 600 वर्ड्स यू आर नॉट एबल टू रैप अप योर आंसर। जैसे ही आप 601th वर्ड लिखने लगेंगे, आपका आगे मूव ही नहीं होगा कर्सर। तो वी नीड टू लर्न दैट हाउ टू रैप अप द आंसर विद इन अ डिफाइंड वर्ड लिमिट। वी कैन नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। टॉपिक वाइज फॉर्डर बनाना है, ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया एडिटोरियल्स को पढ़कर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। इसको आप जरूर एग्जीक्यूट कीजिए, दिस वुड बिकम वेरी हैंडी व्हेन यू आर नियर द पेपर। एंड देन लर्न टू अडेप्ट टू दी बैड इंटरफेस। आपका इंटरफेस बहुत गंदा होता है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपके जो कीबोर्ड्स होते हैं, दे आर नॉट एज गुड एज वॉट यू माइट बी हैविंग एट योर होम। ठीक है, पहले तो वो अच्छा नहीं होगा शायद उस क्वालिटी का। दूसरी चीज़, अगर अच्छा भी है, इट माइट बी डिफरेंट। आप किसी भी कीबोर्ड पे जब शिफ्ट करते हैं, इट टेक्स यू लॉट ऑफ टाइम टू अडेप्ट टू इट, टू हैव अ स्पीड ऑन दैट। तो हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? अगर हम शुरू से ही किसी एक कीबोर्ड पे कंटिन्यूस प्रैक्टिस ना करके, वी कीप चेंजिंग आवर कीबोर्ड सो दैट वी आर continuously in the adaptation mode rather than becoming habitual to one, it will help you tackle this problem very easily in the exam, क्योंकि आपको किसी एक की आदत ही नहीं पड़ी। आपके पास कोई भी आ जाए, आपको एक जैसा लगेगा। then evaluation is the last thing but very important thing। आप जितना मर्जी लिख लो, जितना मर्जी इन पॉइंट्स पे जो मैंने बताए हैं काम कर लो, बट टिल द टाइम व्हाट यू राइट इज नॉट evaluated, you will not get real time feedback कि यार मैं सही भी जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। So evaluation is something which is not easy. Nobody will evaluate it for you just for the sake of it. ठीक है, कि आप किसी को बोलो evaluate कर दो, या तो वो करेगा, नहीं करेगा तो शायद मन से नहीं करेगा। So it is very important that you find some good mentors, friends, seniors, selected aspirants, those who are working in RBI, those who can help you out on this. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स वालों को तो कहीं ना कहीं कोर्स में ही evaluation मिल जाती है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग सिली मिस्टेक्स ऑल्दो दे आर टाइपिंग डेली एंड दे ओनली रियलाइज आफ्टर द एग्जाम कि यार वो सिली मिस्टेक्स किसी ने पकड़ी नहीं, नंबर कम आए, जरूर ऐसी कुछ मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ। और एक आंसर डेली लिखना है। देयर इज नथिंग विच कैन हेल्प यू इम्प्रूव एक्सेप्ट राइटिंग। जितना मर्जी स्ट्रैटेजी बना लो, जितना मर्जी सुन लो, जब तक लिखोगे नहीं, इंप्रूव नहीं करोगे। So that was about ESI. I hope that was a pretty elaborated strategy. Now moving on to descriptive English. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में यही बोलूँगा, 100 मार्क्स है, कोई सिलेबस नहीं है इसका, लोग पढ़ते नहीं है, बट दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। दो देयर इज नो सिलेबस बट स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो पेपर आपका बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं पेपर में आपको। फर्स्ट वुड बी एसे, सेकेंड वुड बी प्रेसी एंड थर्ड वुड बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वेटेज फिक्स नहीं है, कई बार एसे 40 का आ जाता है, प्रेसी 30 की, कॉम्प्रिहेंशन 30 का, कई बार एसे 30 का, प्रेसी 30 की, कॉम्प्रिहेंशन 40 का। सो द वेटेज इज नॉट फिक्स, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। वर्ड लिमिट इज ऑल्सो नॉट फिक्स, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बट नाउ कमिंग टू द पॉइंट, प्रेसी आपकी कहीं ना कहीं किसी लीडिंग न्यूज़पेपर्स में से आती है, बट देन देयर इज नो पॉइंट इन रीडिंग एवरीथिंग इन द न्यूज़पेपर के सेम पढ़ा पढ़ाया आ जाए। उसके लिए तो सारे न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे हर रोज़, वो पॉसिबल नहीं है।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ पैराग्राफ्स आते हैं. नाउ दे कैन बी फ्रॉम एनी टॉपिक, फाइनेंस, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स, एनीथिंग. अगेन देयर इज नो पिन पॉइंटेड थिंग जो मैं आपको बोलूं कि आप ये पढ़ लो. ऐसे में ज़रूर है कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आपको 4 ऐसे आएंगे, 4 या 5. उनमें से एक ऐसे हो सकता है इकोनॉमी पे आ जाए, जैसे कि इकोनॉमी से रिलेटेड आपको आ गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है. या फिर फाइनेंस में आ गया आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पे, मैनेजमेंट पे आ गया टीम वर्क पे, मेंटल हेल्थ पे, टेक्नोलॉजी या इंटरनेट पे आ गया एआई पे, सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया इज़ अ बून और बेन, ऐसे भी टॉपिक्स आ रखे हैं. रोल ऑफ आईटी इन कम्युनिकेशन. अब्स्ट्रैक्ट मतलब थॉटफुल. पीस वर्सेस वॉर मतलब ओपन एंडेड है. सोशल इश्यूज मतलब विमेन एम्पावरमेंट, ड्रग अब्यूज, इलिटरेसी, यूथ एम्प्लॉयमेंट. एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से रिलेटेड. तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स दिखाता हूँ जो पास्ट ईयर्स में आए हैं. यू विल बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आया था, ये 2023 के टॉपिक्स हैं, तो एनवायरनमेंट से मैप करता है. डिजिटल करेंसी फाइनेंस से मैप करता है, या आईटी से भी मैप कर सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से. देन इनोवेशन मेथड्स फॉर मॉडर्न एम्प्लॉयज अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, मैनेजमेंट का टॉपिक है. मल्टी लिंग्विस्टिक सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया से रिलेटेड है. सो वी कैन मैप ऑल दी ऐसे टॉपिक्स टू दीज एरियाज विच आई हैव डिफाइंड फॉर यू. 2022 की बात करें तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे आया था, एनवायरनमेंट. रोल ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ये हमारा सोशल इश्यूज है. देन इंडिया हैज बिकम मेडिकल डेस्टिनेशन फॉर द वर्ल्ड. मे बी दिस कैन बी मैप टू द सोशल इश्यूज, बट दिस इज बेटर टू बी केप्ट असाइड. ये शायद किसी से मैप नहीं करता है. पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग, थॉटफुल. ठीक है, 2024 की भी बात कर लेते हैं, आरबीआई के टॉपिक से. डिस्कस व्हाट वुड बी दी सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ होस्टिंग ओलंपिक्स इन इंडिया. तो ये सोशल वाला पार्ट सोशल इश्यूज से है, एनवायरमेंट वाला पार्ट आपका एनवायरमेंट से है. देन क्लाइमेट चेंज भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है. मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़, ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से रिलेटेड है क्योंकि एम्प्लॉयज़ की बात की जा रही है. देन एनीबॉडी हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड, वेदर एट 20 और 80, दिस इज अगेन अब्स्ट्रैक्ट और थॉटफुल. ये मतलब थॉटफुल टॉपिक्स हैं जो लोग कम ही अटेम्प्ट करते हैं. सो दी बेसिक आइडिया आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन्हीं एरियाज में आपको एक्स्ट्रापोलेट करना है, टॉपिक्स को करना है. जैसे कि अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट्स में बहुत बढ़ रहा है. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, विच इज़ रिस्की फॉर पार्टिसिपेंट्स. फिनफ्लुएंसर्स जो हैं, जो आपको गाइड करते हैं पैसा कहाँ इन्वेस्ट कीजिए, उनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है. इन पे आ सकता है. दिस इज जस्ट द रीसेंट ट्रेंड, दिस विल चेंज एवरी ईयर. मैनेजमेंट की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, मोटिवेशन, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, इन पे आ सकता है. एनवायरनमेंट की बात करें तो क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इन पे आ सकता है. टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की बात करें तो एआई, साइबर अटैक्स, डिजिटल फ्रॉड्स, उन पे आ सकता है. एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस थॉटफुल की बात करें तो पीस वर्सेस वॉर, एम्बिशन वर्सेस लव, लर्निंग वर्सेस अर्निंग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं. आई कैनॉट लिस्ट एवरीथिंग फॉर यू, बट इफ यू सर्च ऑन इंटरनेट यू विल कीप एक्स्ट्रापोलेटिंग. सोशल इश्यूज की बात करें तो अगेन टॉपिक्स लाइक विच आर प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी, जेंडर इनइक्वालिटी, माइग्रेशन, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन पे आ सकता है. So this is about the areas you need to work on and how to practice on descriptive English. That is something very very important because see आप कुछ videos देख के ये तो सीख जाएंगे कि essay, précis, comprehension कैसे attempt करना है. You will learn the ground rules. I would say watch those videos 10 times, 15 times to learn the ground rules. But at the end it will boil down to practice. Practice कैसे करनी है? Read editorials. कहाँ पे? हिंदू में, इकोनॉमिक टाइम्स और लाइव मिंट में से एक. सो हिंदू एक न्यूज़पेपर हो गया, इन दोनों में से एक पढ़ना है, वो दूसरा न्यूज़पेपर हो गया. जो भी एडिटोरियल पढ़िए उसको टाइप कीजिए, हाथ से नहीं लिखना है, टाइप करना है इन नोटपैड, नॉट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज अ ऑटो करेक्शन फीचर, इट विल नॉट हेल्प यू मेक एनी मिस्टेक, क्योंकि वो आपकी सारी चीजें ऑटो करेक्ट कर देगा. सो लेट्स राइट इन अ नोटपैड वेयर वी राइट रॉन्ग एंड वी आर एबल टू कैच अवर एरर्स एंड राइट इन योर ओन लैंग्वेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. And this editorial that you would be typing, you should be typing after a gap of 3 days. मतलब
अगर आपने मंडे को एडिटोरियल पढ़ा है, आप उसको थर्सडे को लिखिए, ट्यूसडे वाला एडिटोरियल आप फ्राइडे को लिखिए। सो ऐसा नहीं मंडे को पढ़कर थर्सडे को लिखा फिर फ्राइडे को पढ़ा, पढ़ना हर रोज है, बट मेक इट अ साइकिल, मंडे वाला थर्सडे लिखना है, ट्यूसडे वाला फ्राइडे लिखना है, like that. Because after 3 days you would be able to type in your own language rather than just copying the language which you would have read. And once you have typed the editorial, you use Grammarly website to self-evaluate. Just go to the Grammarly website, paste your content there, and it will help you evaluate at least on the error part. इसके बहुत सारे benefits हैं. Your error improvement will happen because Grammarly will show your spelling errors, grammatical errors, punctuation errors. Watch them consciously and improve them slowly and slowly. Your typing speed will improve if you will keep typing daily. You will start making a better structure because the editorials that you are reading are very well structured. अगर आप वही structure follow करेंगे, you will learn to write in a structured manner, and your content will become enriched over a period of time because what you are reading in editorials is like a diamond. अगर आप उसका 10-15% भी retain करके एग्जाम में लिखा हो ना, it would really give you good numbers not only in English but also in your ESI and FM paper. So that is about descriptive English, right? And before I go, I would like to tell you कि ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है आरबीआई के लिए, विच यू कैन डाउनलोड एज अ स्टार्टर फॉर आरबीआई. द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. दिस इज completely free to download. This will give you a lot of information, that's in salary, hierarchy, promotions, offices of RBI, and this will also give you previous year papers of RBI, the decoded syllabus of RBI, which you will have to search a lot on internet, but यहाँ पे आपको एक ही बुक में सारी information मिल जाएगी. This is very compact and it will help you learn lot of things in just, I would, matter of hours, which you would require at least a day or two if you would have been searching on the internet. So with that, I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.